सभी को जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति का जो चैप्टर 9 है उसे हम रीड करेंगे और हिंदी में उसे पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि जो हिंदी वालों को भी ये समझ आए और जो इस वीडियो को देखेगा वो ब्लेस होगा, आशीषित होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर ਦਾ ਨੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵਧੋ ਫਿਲੋ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ, ਘਿਸਰਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ ਮੰਨਣਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਗ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਰਥਾਤ ਲਹੂ ਸਮੇਤ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਲਵੇਗਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦੇਵੋ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਘੱਲਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਨੇਮ ਦਾ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਠਹਿਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਘੱਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹ ਬਣ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਅਮਰ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਨਵ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ठहरेगी। सो फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने नूह और उसके जो पुत्र थे उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि बड़ो फूलो और सारी जो धरती से भर दो। तो परमेश्वर ने कहा कि जो सारे जानवर, पंछी हैं, सब वो तुम्हारा भय मानेंगे। मैं उन सब पर तुम्हें अधिकार देता हूँ। तुम सभी जो है जीवित चीज़ें हैं उन्हें तुम साग पत्त के समान खा सकते हो, पर उनका जो लहू है वो मत खाना, क्योंकि लहू में जान होती है। तो परमेश्वर कहते थे कि लहू खाने वाले को मैं उससे बदला लूँगा, क्योंकि जो कोई जानवर किसी मनुष्य को मारेगा उससे भी मैं बदला लूँगा। जो मनुष्य की परमेश्वर ने कहा रचना है वो मेरे स्वरूप में हुई, इसलिए जो कोई उसे मारेगा वो भी अपने साथी द्वारा मारा जाएगा। इसी प्रकार परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और नूह के साथ एक वाचा को बांधा। नूह के साथ और उसके बेटों के साथ, उसकी संतान के साथ एक जो वाचा को बांधा कि परमेश्वर ने कहा, आगे से मैं मनुष्य जाति को कभी भी ऐसे पानी के साथ नाश नहीं करूँगा। मेरी इस जो नेम का जो चिन्ह है ये है कि जब भी आगे से वर्षा होगी तो जो धरती है वो आसमान में एक जो है वो इंद्रधनुष दिखाई देगा वर्षा के बाद। और ये मेरा नेम का एक चिन्ह हुआ कि जो धरती को मैं आगे से कभी भी ऐसे पानी के साथ मैं नाश नहीं करूँगा। और जो मैं कभी भी ये मनुष्य जाती है ऐसे कभी भी पानी के साथ जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं इसे नाश नहीं करूँगा। ये जो इंद्रधनुष होगा वो हर प्राणी के साथ मेरे इस अमर नेम को याद कराएगा। मैं इस मानव जाति के साथ जो परमेश्वर ने कहा मैंने ये वाचा बांधी है, ये उसका चिन्ह होगा। ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸੇਮ, ਹਾਮ ਅਤੇ ਯਾਫਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਹਾਮ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਨੂਹ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
ਨੂਹ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨੰਗਾ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਕਨਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤਦ ਸੇਮ ਅਤੇ ਜਾਫਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ੇਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਫਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਨਾਨ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂਹ 350 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਦੇ ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 950 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। सो फिर क्या हुआ, जो नूह था उसके 3 पुत्र थे, शेम, हाम और जाफित। जो हाम था वो कनान का पिता था। एक दिन जो कनान था वो पहला मनुष्य था जिसने जो था ये इस ज़मीन को जो था वो वाया था और अंगूरी बाग जो था वो लगाया था। एक दिन वो शराब पीकर जो था वो लंबा लेटा हुआ था, वो नंगा था, और जो उसका छोटा पुत्र हाम था जो कनान का पिता था उसने उसे जाकर देख लिया और आकर अपने जो दोनों भाई थे उन्हें बताया, पर उन्होंने उसे नंगा नहीं देखा। वो उल्टे पैरी जाकर उन्होंने उल्टे पाँव जाकर उसे उससे चादर से ढक दिया। सो जब नूह का नशा उतरा तो उसने क्या देखा कि उसके छोटे पुत्र ने उसे देख लिया था। सो उसने उसे जो था हाम को श्रापित कर दिया कि तेरा पुत्र जो होगा कनान वो श्रापित होगा, वो उसके भाइयों का गुलाम बनकर रहेगा। और जो परमेश्वर ने कहा कि शेम जो वो आशीषित होगा, कनान उसकी गुलामी करेगा, और जाफत भी शेम के साथ मिलकर रहेगा, वो भी आशीषित होगा, और जो कनान उसकी जो गुलामी करेगा। इसके बाद नूह जो था 500 साल और जीवित रहा और उसकी जब मरने के समय उम्र 950 साल की थी, तब वो जो था उसकी जो थी वो मौत हो गई थी। इस प्रकार जो था कनान जो था वो श्रापित हो गया था। सो हमें इस वीडियो में इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। उसके एक पुत्र ने जो था अपने पिता को नंगा देख लिया और इससे प्रकार उसके सारा जो वंश था वो श्रापित हो गया। सो परमेश्वर आज भी हमें जो कनान की आशीषें देना चाहती है। परमेश्वर हमें वो कनान की आशीषें क्यों देते हैं? वो बहुत ही एक ब्लेस जगह थी जहाँ पर दूध शहद की नदियाँ थी, पर उसके इस गलती के कारण, उसका बेटा हाम की गलती के कारण कनान जो था वो भी श्रापित हो गया। और जो इतनी ब्लेस्ड धरती थी वो परमेश्वर आज भी अपने लोगों को देना चाहते हैं, वो ही ब्लेसिंग, कनान वाली ब्लेसिंग्स। जब हम उसके राहों पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें वो वाली ब्लेसिंग्स देते हैं, वो इतनी अबंडेंस ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स देते हैं जो परमेश्वर ने तब जो थी सेम को और जाफित को दी थी। सो आज भी परमेश्वर हमें वैसी ब्लेस करना चाहते हैं। हमें उसके राहों पर चलना है तो परमेश्वर हमें भी वैसे ब्लेस करेंगे और आशीषित करेंगे, और दूसरों को भी हमें आशीषित करने का एक सोर्स बनाएंगे, सोमा बनाएंगे। सो इस वीडियो के द्वारा आप सब आशीषित हों, सब ब्लेसिंग्स को पाएँ। इस वीडियो को देखने के द्वारा आप सब आशीषित हो, ब्लेस हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन, आमीन।